میرے ایجنٹ کی گہری نظریں مجھ پر جمی تھیں اور میرے چہرے کے تاثرات نے اسے بتا دیا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے اسرائیلی ڈپٹی چیف سے کہا کہ سر میں ابھی آ رہا ہوں، آپ شہر کی فوری ناکہ بندی کا حکم دیں۔ ریسیور رکھتے ہی میرے ایجنٹ نے پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ لوگ اب میری گرد کو بھی نہیں چھو سکتے، چاہے وہ پورے ملک کی ناکہ بندی ہی کیوں نہ کر دیں۔ میں نے صوفے پر سے اپنی جیکٹ اٹھا کر پہنی اور کہا کہ تم نیچے تک خانے میں چلے جاؤ، مجھے فوراً ہیڈ آفس پہنچنا ہے کیونکہ تمہارے فرار نے وہاں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایجنٹ نے جواب دیا کہ یہ وقت تک خانے میں چھپنے کا نہیں اور مجھے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جانا ہوگا، مگر اس وقت تم جاؤ گے کہاں؟ میرا سوال سن کر ایجنٹ اطمینان سے صوفے سے اٹھا اور بولا کہ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں جانتا ہوں مجھے کہاں جانا ہے، آپ بس مجھے ایک پستول اور کچھ گولیاں دے دیں۔ میں نے اسے الماری سے پستول اور گولیاں نکال کر دیں۔ میں نے اسے کچھ کھا کر جانے کے لیے کہا تو وہ بولا کہ شیر جہاں جاتا ہے اپنی خوراک پیدا کر لیتا ہے، میں اب پنجرے سے باہر ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اگر میں مر بھی گیا تب بھی یہ مائکرو فلم دمشق ضرور پہنچ جائے گی۔ اس نے پستول اور گولیاں اپنی قمیض کے اندر چھپائیں اور کھڑکی سے بنگلے کے عقبی باغ میں کودا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اس مسلمان حریت پسند شامی کے جذبے اور ناقابل شکست اعتماد سے بہت متاثر ہوا۔ جس قوم کے جوانوں میں ایسا عزم ہو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب مجھے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ڈپٹی چیف کے پاس پہنچنا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اس کے بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں گود میں ٹیلی فون رکھے انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، نہ جانے کہاں کہاں فون کر رہا تھا اور سخت لہجے میں ہدایات دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون ایک طرف رکھا اور بفر کر بولا، یہ سب گارڈ نااہل اور گدھے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مگر وہ فرار کیسے ہوا؟ ڈپٹی چیف غضبناک لہجے میں بولا کہ کسی نے کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی اور سب گارڈز بے ہوش ہو گئے۔ میں نے سب کو معطل کر دیا ہے مگر دایان اس شامی ایجنٹ کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے۔ تم کچھ کرو کیونکہ مجھے اسرائیلی پولیس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے پریشانی کا ناٹک کرتے ہوئے میز پر ہلکا سا مکہ مارا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے گہری سوچ میں ہوں۔ دراصل میں یہ ترکیب سوچ رہا تھا کہ کس طرح اسرائیلی پولیس اور کمانڈوز کو کم از کم ایک دن کے لیے غلط راستے پر ڈالا جائے۔ ایجنٹ کی باتوں سے مجھے اشارہ ملا تھا کہ وہ لبنان کی طرف سے اسرائیل کی سرحد پار کرے گا، چنانچہ میں یہودی پولیس کو لبنان کی سرحد کی طرف جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈپٹی چیف کی طرف دیکھا اور ہوا میں انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے وہ عمان کی طرف سے سرحد پار کرے گا۔ 2 روز پہلے اس بارڈر پر فلسطینی جاسوسوں کی سرگرمیوں کی اطلاع ملی تھی۔ ڈپٹی چیف نے فوراً پولیس کمانڈوز کے چیف کو فون پر ہدایت کی کہ عمان کی سرحد پر فورس روانہ کر دی جائے۔ اس حکمت عملی سے میں نے یہودی پولیس کو لبنان کی سرحد سے دور کر دیا تاکہ میرا ایجنٹ نسبتاً محفوظ حالات میں بارڈر کراس کر جائے۔ اس کے بعد میں اپنے بنگلے پر واپس آیا، مگر راستے میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی گاڑی ڈپٹی چیف کے بنگلے سے میرے نکلنے کے بعد سے ہی میرے پیچھے لگی تھی۔ پہلے میں نے اسے معمول کا خیال کیا، لیکن جب میں نے اسے مسلسل اپنے تعاقب میں دیکھا تو سڑک پر ایک جگہ گاڑی روک لی۔ میرا خیال تھا کہ تعاقب کرنے والی گاڑی بھی رکے گی، مگر وہ نہیں رکی بلکہ ایک چھوٹی سڑک کی طرف مڑ گئی۔ میں نے 2-4 منٹ انتظار کیا پر وہ گاڑی پھر نمودار نہ ہوئی۔ پھر میں نے اپنے بنگلے کی طرف چلنا شروع کر دیا، لیکن اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے اپنے کسی آدمی کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، اس کا مطلب صاف تھا کہ انہیں مجھ پر کچھ نہ کچھ شک ضرور ہو گیا ہے۔ میں کوئی تربیت یافتہ جاسوس نہیں تھا، اس لیے مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی تھی جو میری زندگی کی آخری غلطی ثابت ہوتی۔
बंगले पर पहुंचते ही मैंने तमाम बत्तियां बुझा दी और सिर्फ बेडरूम का टेबल लैंप जलता रहने दिया। कपड़े बदल कर मैं सबसे पहले तहखाने में गया और वहां अलमारी में रखे वायरलेस सेट का जायजा लिया। फिर तहखाना बंद करके ऊपर ड्राइंग रूम में आ गया। यहाँ अंधेरा था जबकि बाहर बागीचे में रोशनी हो रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर गेट की तरफ देखा। गेट बंद था और बाहर कोई नहीं था और मेरी कार गैराज में खड़ी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई साया गैराज से निकलकर तेजी से किचन की तरफ भागा है। मैंने फौरन अलमारी से अपना दूसरा पिस्तौल निकाला और किचन की तरफ बढ़ा। किचन का दरवाज़ा बंद था मगर मैं एक तरफ ओट में खड़ा हो गया और मुझे यकीन था कि ये वही शख्स है जो गाड़ी में मेरा पीछा कर रहा था। वो पुरस्कार साया उस तरफ आकर गहरी झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गया था। मैंने सोचा कि हो सकता है वो बंगले के अकबी बाग में आ गया हो। बरामदे की बजाय मैं बेडरूम के वाशरूम के पिछले दरवाजे से निकलकर बाग में आया तो अचानक पिस्तौल के फायर का जोरदार धमाका हुआ। गोली मेरे बिल्कुल करीब दरवाजे की चौखट में पेवस्त हो गई। मैं तेजी से नीचे झुका और जिधर से फायर हुआ था उधर ऊपर तले 4-5 गोलियां चला दी। मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई और मैं उसके पीछे लपका तो एक साया दीवार फांदकर दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया। मैं भी दीवार पर चढ़ गया मगर दूसरी तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। अब इसमें कोई शक नहीं रहा था कि इस्राएली इंटेलिजेंस को मुझ पर शक हो गया है। लेकिन सवाल ये था कि इस पुरस्कार शख्स ने मुझ पर फायर क्यों किया। अगर इस्राएली मुझे हलाक ही करना चाहते थे तो वो दिन के वक्त बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते थे। मैं उनके मुल्क में था और दिन का बेशतर हिस्सा उनके साथ ही गुजारता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चोर या उठाई गिरा था जो मुझे लूटने की गर्ज से मेरे पीछे लगा था। अगर ऐसी बात होती तो उसे मुझ पर फायर करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो बागीचे में उसे देखा ही नहीं था और ना मैं उसे पकड़ने की गर्ज से उसकी तरफ दौड़ा था। सूरत-ए-हाल एक अजीब मुअम्मे की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इन तमाम वाक़यात पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब मुझे अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकल जाना चाहिए। वैसे भी मेरा सबसे अहम मिशन पूरा हो चुका था, यानी इस्राएली डिफेंस इंटेलिजेंस की माइक्रो फिल्म दमिश्क रवाना हो चुकी थी। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं था और हालात भी मेरे लिए ख़तरनाक होते जा रहे थे। चुनाचे मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया, मगर वापस रवाना होने से पहले मैं वायरलेस पर दमिश्क से राब्ता कायम करके ये ज़रूर मालूम कर लेना चाहता था कि क्या उन्हें मेरी भिजवाई हुई खुफिया माइक्रो फिल्म मिल गई है। उसके लिए मुझे मज़ीद एक दिन इंतज़ार की ज़रूरत थी ताकि अपना एजेंट बॉर्डर क्रॉस करके दमिश्क पहुंच जाए। दूसरे दिन मैं अपने दफ्तर आ गया और ज़रूरी कागजात देखे, मगर मैंने किसी को नहीं बताया कि रात मेरे बंगले पर कातिलाना हमला हुआ था। मैं थोड़ी देर बैठा था कि वहां अचानक मेरी मंगेतर नादिया का फ़ोन आ गया। वो बोली, दायान आज मौसम बहुत खूबसूरत है, दफ्तर के काम को छोड़ो क्योंकि मैं पार्लर कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ देर बैठेंगे और काफ़ी पिएंगे, बातें करेंगे और फिर वापस दफ्तर चले जाना। मैं उसे इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि कहीं मेरी बेअतनाई उसे भी किसी शक व शुबाह में ना डाल दे और मैं फरार होने से पहले ही पकड़ा जाऊं। मैंने कहा कि मैं अभी पहुंच रहा हूं। पार्लर कैफ़े एक बड़े पुरफिजा मकाम पर था और नादिया मौसम बहार का लिबास पहने बाग में खजूर के दरख्तों के नीचे मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मौसम के बारे में बातें शुरू कर दीं। फिर अचानक उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं और वो चंद सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर बोली कि दायान क्या बात है, तुम्हारे बारे में डिपार्टमेंटल खुफिया इंक्वायरी क्यों शुरू हो गई है। मैं चौंक सा गया मगर चेहरे पर किसी किस्म का तासुर ना आने दिया। यूं ही बेनियाजी से सर को हिलाते हुए कहा कि ऐसी इंक्वायरी महकमे के हर अफसर की हर साल हुआ करती है और ये कोई नई बात नहीं है।
नादिया ने ज़रा करीब होकर कहा कि मगर मुझे चीफ की तरफ से ख़ास तौर पर हिदायत पहुंचाई गई हैं कि मैं तुम्हारी नकल व हरकत पर नज़र रखूं और उन्हें रिपोर्ट दूं। ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर तुम्हें कह रही हूँ। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? नादिया की बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं इस्राएली इंटेलिजेंस की नज़रों में आ चुका हूँ और किसी न किसी वजह से उन्हें मुझ पर शक पड़ चुका है। मेरी खैरियत उसी में थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वहाँ से भाग निकलूँ। मैंने नादिया की ये कहकर तसल्ली कर दी कि ये एक मामूल की कार्रवाई होती है और हर खुफिया अफसर की उसी तरह इंक्वायरी की जाती है, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो दुश्मन के मुल्क में कैद काट चुके हों। नादिया चुप हो गई, मगर लगता था कि उसे मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं आया। अब मुझे उसे यकीन दिलाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ से फ़रार का प्रोग्राम दिल में पक्का कर चुका था। मुझे सिर्फ रात होने का इंतज़ार था। बाकी का सारा दिन मैंने अपने दफ्तर में गुजारा और शाम को बंगले पर वापस आ गया और फिर रात के खाने पर डिप्टी चीफ मुझसे मुलाकात करने आ गया। वो मफरूर शामी एजेंट की तलाश के बारे में बातें करता रहा, मगर मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें भी कुछ बदली हुई थीं। मैं इस बात पर बड़ा हैरान था कि अगर उन्हें मुझ पर शक पड़ गया है तो वो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जिस यहूदी जासूस दायान का मैंने भेस भरा हुआ था, उसे इस्राएली वज़ीर दिफा की ख़ास मुराद हासिल थीं और वो उनके रिश्तेदारों में से था। इसलिए बग़ैर किसी ठोस सबूत के कोई भी मुझ पर हाथ नहीं डालना चाहता था, और सबूत उन्हें उसी रात मिल गया। ऐसा हुआ कि रात को वहां से फरार होने से पहले मैंने सोचा कि चूंकि वायरलेस सेट मेरे पास है और दमिश्क सीक्रेट सर्विस का कोड भी मुझे मालूम है, तो क्यों ना जाने से पहले उनसे बात करके फाइल नंबर 2 की माइक्रो फिल्म के बारे में पूछ लूं। इस तरह मुझे इत्मीनान हासिल हो जाता कि हमारा शामी एजेंट भी खैरियत से दमिश्क पहुंच गया है और खुफिया फिल्म भी दमिश्क वालों को मिल गई है। मैंने वहां से फरार होने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। इस मकसद के लिए मैंने अपनी गाड़ी गैराज से निकालकर बंगले की पिछली दीवार के साथ खड़ी कर रखी थी। ज़रूरी करेंसी, पिस्तौल, गोलियां और पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल भी साथ रख ली थी। जब रात के ठीक 12 बजे तो मैंने सियाह रंग की जैकेट पहनी, कमर के साथ रिवॉल्वर और पानी की बोतल वाली बेल्ट बांधी और तहखाने में उतर गया ताकि दमिश्क वालों से वायरलेस पर बात कर सकूं। मैंने वायरलेस सेट खोलकर ख़ास फ्रीक्वेंसी मिलाई और कोड लफ्ज़ दोहराने लगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे बंगले के आसपास एक फरलांग के घेरे में इस्राएली पुलिस की 2 माइक्रो वैगनें खड़ी हैं, जिनके अंदर बैठे पुलिस अफसरान अपने सीटों पर मेरे वायरलेस सिग्नल सुन रहे थे, और उनके लिए ये मालूम करना कि ये सिग्नल मेरे बंगले से आ रहे हैं कोई मुश्किल बात नहीं थी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।